Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be good, fit and fine. Friends, today in this particular lessons, I am going to tell you about some common abbreviations or the short form of the verbs. Those are used frequently in our daily life. But most of the students even don't know their full form. Even these words or these abbreviations are used in almost every aspects of life, day to day life, but we don't even know if what is the full form of these words. Friends, कुछ ऐसी एब्रीवेशंस है मेरे पास जो हमारे कॉमन यूज होती हैं, कॉमनली यूज्ड होती हैं, लेकिन इन एब्रीवेशंस की फुल फॉर्म के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. So let's we start with some of these selected abbreviations we are going to discuss in this lesson particularly. One thing I want to tell you that most of these abbreviations I am telling you in this particular lesson are actually not belongs to English language. As all of you know that English is not its own language, but it is a group of other languages just like Latin, French, German, Greek, Latin, etc. In this way, all these words, these abbreviations also from the other languages came into English. ये एब्रीवेशन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ इस लेसन में मोस्टली इंग्लिश से बिलोंग नहीं करती, बल्कि दूसरी भाषाएं जैसे लेटिन है, जर्मन है, ग्रीक है और हमारी फ्रेंच वगैरह दूसरी भाषाएं, उन भाषाओं के ही ये जो वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के अंदर यूज़ किए जाते हैं. तो लीजिए वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड ईजी. मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन ईजी. इट मीन्स द फुल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड इज एग्जाम्पली ग्रेसिया. Exempli gratia, and this is the Latin word. Mind it please, this is Latin word, not of English. Latin word used in English, exempli gratia, which this word's meaning in English is for example. ये वर्ड जो है वो बेसिकली लेटिन भाषा का शब्द है जो इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग जो बनता है वो क्या बनता है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए. जैसे हम किसी चीज़ के लिए एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, भी जैसे हमने कोई एग्जाम्पल दिया तो उस फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पली ग्रेशिया. इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या, एग्जाम्पली ग्रेशिया. इन द अदर वर्ड आई ई. मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन आल्सो दिस इन द एंड ऑफ ए सेंटेंस. वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग. Idest, idest, it is also Latin word. Remember that it is also Latin words. This word means in English is that is or in other words. ये भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दूसरे शब्दों में, या मतलब किसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है और उसी को अगर हम किसी दूसरे शब्दों में दूसरी उसकी परिभाषा देते हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं इसमें idest, इसकी फुल फॉर्म. द अदर वर्ड वी आर टेकिंग इज ETC, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा. इट इज आल्सो लैटिन वर्ड. इट मीनिंग इन हिंदी इज इन अनदर एंड अनदर थिंग्स. जैसे हिंदी में बोलते हैं आदि इत्यादि. जैसे आई हैव बॉट ए पेन, पेंसिल, पेन, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा. मीन्स लाइक दीज थिंग्स, मोर थिंग्स लाइक दोज, अनदर थिंग्स. Next word is ibid. Ibid. This is new word. Most of the students even did not see that word. Ibid. Ibidem. It is also Latin words ibidem, which meaning in English is in the same place. Used in the same place. एक स्थान पर के लिए यूज किया जाता है इस वर्ड को. Next word is no. That is not a abbreviation. This is short form of also this word is also from Latin language and it is full form is numero. Numero in English we written is number, written in number. नंबर के रूप में हम इसको लिखते हैं. इसकी जो फुल फॉर्म जो असली जो इसका मेन जो वर्ड होता है वो नुमेरो होता है जो लैटिन भाषा का शब्द है.
In our next words takings, VIZ. ये videlicet. Videlicet. It is also Latin word and the meaning in English is the namely. किसी के नाम पर, किसी के नाम के लिए यूज किया जाता है, इसको हम उसके लिए यूज करते हैं. Next word we taken is VS. This is also very commonly used. Also from Latin word, it means versus. Versus. In English, against. किसी के विरुद्ध. जैसे हम कह सकते हैं कोई मैच होता है, कोई चीज़ होता है, कोई लड़ाई होती है, किसी प्रकार की दो मुकाबला होता है किसी चीज़ के, तो दोनों के बीच में हम लिखते हैं तो वर्सेस. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो वर्सेस मीन्स अगेंस्ट. नेक्स्ट वर्ड वी टेक वेरी कॉमन टू वर्ड्स. दीज टू एब्रिविएशंस very commonly used in every aspect of life in our day to day life. Very common word. These are AD. This is also from Latin language and it means Anno Domini. Anno Domini, full form of AD is Anno Domini, which is English, it is used in the year of God. I just want to tell you something about AD or BC. AD, and when the Gregorian calendar was started, it was taken the first year because the universe is starting from the unlimited times. तो जब जीसस क्राइस्ट का जो जन्म का जो माना जाता है एक फिक्स डेट, उसको एक फिक्स डेट मानने के बाद जहाँ से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी 1 2 3 4, क्योंकि कहीं से शुरुआत करनी थी, तो उससे जब यहाँ से शुरू हुआ, इन्हें जीसस के जन्म के बाद का जो समय था, उस समय को हम जो यूज़ करते हैं एडी, जैसे हिंदी में ईस्वी सन, ईस्वी के रूप में यूज़ करते हैं. तो ये एनो डोमिनी, इसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी. ये भी जो है वर्ड जो है वो क्या है, एक लैटिन भाषा का वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड इसी प्रकार से हम लेते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट. इट इज़ आल्सो यूज्ड एट द टाइम, समय के लिए भी. तो जो मैंने बताया कि एडी के अपोजिट, जैसे हमने कोई भी एक टाइम हमने ले लिया, ये हमने ले लिया टाइम ऐसे, तो जैसे ये हमने इधर और इधर ये, यहाँ हमने मान लिया इसको 0, तो इसके जो बाद का जो टाइम है, जो शुरू है, उसको हमने एडी के रूप में लिया, और इसके जो बाद का समय था उसको हमने बीसी, और इसको हम मान लेते हैं क्राइस्ट का जन्म, the birth of Jesus, year of God, the year of God or year of Jesus Christ birth. So after this time used AD, before Jesus time is used as BC, before Christ. So these are two particularly very commonly used words. Here are few words more used in commonly, which are those. We just take it a look on them. These two common words, these two common we can say abbreviations commonly used is AM and PM. Both these abbreviations are used with time. AM and anti-meridium. Anti-meridium, or you can say before midday. Before midday. बिफोर मिड डे, यानी कि 12 बजे से पहले, दोपहर से पहले का समय जो होता है वो एएम के अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है. इन द सेम वे पीएम, पोस्ट मेरिडियम. पोस्ट मेरिडियम, तो इसका मतलब भी क्या होता है, पोस्ट का मतलब बाद में, तो ये कह सकते हैं हम यहाँ पर आफ्टर मिड डे. बोथ दीज एब्रिविएशंस आर आल्सो फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड दीज आर द मीनिंग. तो इस प्रकार से एएम और पीएम की जो फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम. नेक्स्ट वर्ड वेरी कॉमनली यूज्ड, पीएचडी. आमतौर पे हम इसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं. तो जो इसका मेन, जो इसकी जो फॉर्म है, मेन जो इसका जो वर्ड्स है इसके, वो क्या है इसका, फिलोसॉफिक डॉक्टर, आल्सो फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड एज इज फिलोसॉफिक डॉक्टर. और हम इसको इंग्लिश में जो है कॉमनली यूज करते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी. डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कॉमनली यूज्ड. इन द सेम नेक्स्ट वर्ड RIP. particularly in this word at the present time, this
particular abbreviation is very widely used in these days, because whenever we see or any sad news, the news of our own, our close friends or relatives, we just use these abbreviation. So this is I can say this is the abbreviation of present time. वर्तमान समय में जो एब्रीवेशन सबसे ज़्यादा यूज हो रही है वो यही है RIP. तो इस ये भी जो है बेसिकली फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? दिस इज लिसन दिस, रिक्वेस्ट इन पीस. रिक्वेस्ट इन पीस, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रेस्ट इन पीस. इंग्लिश में मीनिंग हम कह सकते हैं इसमें रेस्ट इन पीस, यानी कि किसी की आत्मा को शांति मिले. तो हम किसी को जो है अगर किसी मृतक आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे. तो व्हेन वी से दिस इज RIP मीन्स रेस्ट इन पीस. तो एक्चुअल जो एग्जैक्ट जो वर्ड है इसका वो ये है, इंग्लिश में हम इसको रेस्ट इन पीस लिखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज SOS. SOS, most of the students have listened this word particularly. This is a sign, abbreviation, short form. Whenever we are in need of something, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है उस समय हम इस वर्ड एब्रीवेशंस का यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग जो होता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? सी opposite, also from Latin language. Say opposite is the full form of this abbreviation, which meaning in English is if there is need, या we are in need. जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो वहाँ इस समय हम इसको यूज़ करते हैं. कॉमनली अक्सर जो इसका यूज़ किया जाता है सेव आवर सोल्स. SOS सेव आवर सोल्स. तो इस प्रकार इसका जो है इंग्लिश में एक मीनिंग ये भी हम इसका कर सकते हैं, सेव आवर सोल्स. लेकिन जो इसका मेन जो वर्ड होता है, जो मेन इसका जो जो एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वो ये होता है. नेक्स्ट वर्ड इज टेकन RSPV. My friends from India, most of us use this word. We have seen this. Most of us have written this on also, but we don't know the exact meaning of this word. शादी के या किसी भी निमंत्रण कार्ड के ऊपर हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं, लिखते हैं. एन इन्विटेशन कार्ड वी राइट these words, but we don't know what is the exact form of these words. I'm going to tell you. Réponse s'il was plate. This is the French language words. Mind it, this is French language words used in English as it is. तो जिसे रेस्पॉन्स s'il was plate, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रेस्पॉन्स प्लीज या रिप्लाई प्लीज. RSPV. Most of these words is written on the invitation card. Just like we can say inviting someone. किसी को जब हम निमंत्रण देते हैं उस समय ये लिखते हैं और हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि he must reply our invitation. So that is the meaning of this abbreviation. And these two words are not abbreviations, but these are the short form of the words. Short form. और पर्टिकुलरली हम इन पे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो दिस इज प्रॉप. द फुल फॉर्म ऑफ प्रॉप इज प्रोपराइटर. प्रोपराइटर, यू कैन से इन इंग्लिश ऑनर. इन सिंपल इंग्लिश ऑनर. ऑनर ऑफ समथिंग, ऑनर ऑफ सम फार्म, ऑनर ऑफ सम शॉप और सम कंपनी एटसेट्रा. दिस इज रिटन प्रोपराइटर. और some of my friends call it professor. That is absolutely wrong, because if you are writing professor, PROF होता है इसके अंदर, उसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो P नहीं बनेगी, उसमें F लिखेंगे तो वहाँ आपका प्रोफेसर बनेगा. अगर PROP is written, that it is the full word is proprietor. It means the owner of something. And the last word is LTD, very commonly used and most of the students know it about this. It is limited. Something about a firm or a company that is limited. The short form of limited is LTD. So guys, I hope you will get it what I want to tell you. All these abbreviations, these are
very commonly used our day-to-day life, but we don't know even the exact meaning of these words. By this lesson you will able to know all these basic words, and you also came to know that what is the origin of these abbreviation words. I hope that you will get it well. Soon we'll meet in another new interesting topic like this. Till then, stay with me. Have a nice day. Thank you.